نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ پنجاب کا کھلاڑی کہیں نہیں جا رہا اور پنجاب میں عثمان بزدار کے ہاتھ ہی رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیان نے افواہوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ حکومت ایک بار پھر سے خم میں آ چکی ہے۔ کپتان کو وسیم اکرم پلس پر اعتماد۔ عثمان بزدار کی تبدیلی کا فیصلہ افواہ ہے۔ بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ علی اکبر، کیا خبر ہے یہ؟ بالکل، اگر ہم بات کریں تو سینٹ انتخابات اور 30 مارچ کے بعد جو ہے یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے جو ہے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا ان کی کسی قسم کا جو ہے استعفیٰ لے لیا گیا، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور کافی جو ہے اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا پرنٹ اور ہمارا نیشنل میڈیا اس کے اوپر بھی جو ہے اس طرح کے تبصرے اور باتیں کی جا رہی تھی کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب سے اور خاص طور پہ بنی گالا نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے رابطہ کیا ہے، ان کو حوصلہ دیا اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ڈٹ کے کام کریں، پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ کام کریں اور کسی قسم کی افواہوں کے اوپر جو ہے وہ کان نہ دھریں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں وہ افواہیں جو ہیں دم توڑ چکی ہیں اور باقاعدہ عمران خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے رابطہ کیا گیا ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کی افواہوں پہ جو ہے وہ توجہ دینے کے بجائے اپنے کام پہ توجہ دیں اور پہلے سے زیادہ ڈٹ کے کام کریں۔ پہلے سے زیادہ ڈٹ کے کام کریں، یہ ان کو کہا گیا ہے۔ علی اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ پنجاب کی کمان عثمان بزدار کے ہاتھ میں ہی رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیان نے افواہوں کا گلا گھونٹ دیا۔ حکومت ایک بار پھر خم ٹھونک کر میدان میں آ چکی ہے۔ اپوزیشن کی ہر حکمت عملی کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان نے عثمان بزدار پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ڈٹ کر کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کورونا کا ظلم جاری ہے۔ خاتون ٹیچر سمیت 11 افراد کی جان گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں 526 نئے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ وائرس میں مبتلا سیشن جج ظفر اقبال کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی میاں شفیع بیمار ہو گئے۔ ایل ڈی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر اکاؤنٹس بھی کوارنٹینڈ ہیں۔ 115 مریض آئی سی یو میں منتقل ہیں جبکہ 19 افراد وینٹیلیٹر پر زیر علاج ہیں۔ کرکٹ کے میدان سے ایک اور مایوس کن خبر سامنے آ گئی ہے۔ پی سی بی کے ایک ملازم میں بھی کورونا کی تصدیق۔ پاکستان کرکٹ کیمپ بھی کورونا کے باعث روک دیا گیا ہے۔ کیمپ میں شامل تمام کرکٹرز کے کورونا ٹیسٹ ہوں گے۔ رپورٹ کلیئر آنے کے بعد ہائی پرفارمنس کیمپ دوبارہ شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے دفاتر کو 4 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بے بس عوام پر مہنگائی کے وار جاری ہیں۔ بجٹ سے پہلے بجٹ کے جھٹکے۔ گھی اور خوردنی آئل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ درجہ دوم گھی 5 روپے بڑھ گیا، 255 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ درجہ اول گھی کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ انڈوں کا پارا بھی مزید چڑھ گیا، 2 روپے مہنگے 160 کے درجن میں فروخت ہو رہے ہیں۔ حکومت نے مہنگائی کے اس دور میں عوام پر مزید بجلی گرا دی۔ محکمہ داخلہ نے گاڑیوں کی چالان فیس بڑھا دی ہے۔ 3 ویلر کو بھی جرمانوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جرمانوں میں اضافے کو شہریوں نے مسترد کر دیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آ گئی ہے۔ محکمہ داخلہ نے گاڑیوں کی فیس چلان میں اضافہ کر دیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے 3 ویلر کو بھی جرمانوں میں شامل کر لیا ہے۔ جرمانوں کے نئے شیڈول کے مطابق موٹر سائیکل کا کم از کم جرمانہ 500 روپے ہوگا، جبکہ 3 ویلر کی اوور لوڈنگ کا جرمانہ 750 روپے کر دیا گیا ہے۔ 3 ویلر کی اوور سپیڈ کا جرمانہ 500 روپے ہوگا۔ کار کی اوور سپیڈنگ کا جرمانہ 1000 روپے۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر اب 750 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ پبلک وہیکل کا اوور سپیڈ کا جرمانہ 1000 روپے۔ پبلک وہیکل بس کی اوور لوڈنگ کا جرمانہ 1500 روپے ہوگا، جبکہ 20 پوائنٹس ہونے پر ڈرائیور کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ شہریوں نے جرمانوں کی شرح میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے جرمانوں کے پوائنٹس بھی مقرر کر دیے ہیں۔ جی، محکمہ داخلہ نے ٹریفک کے جرمانے بڑھا کر عوام پر ایک اور بم گرا دیا ہے اور عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ کیمرہ مین شاد محمود کے ساتھ کیسر کھوکر، سٹی 42 سول سیکریٹریٹ۔ تمباکو اور سگریٹس کی مصنوعات خرید و فروخت پر دوبارہ ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 5 ملازمین کی دکان پر 50,000 روپے ڈیوٹی عائد کی جائے۔ سمری کا یہ متن ہے۔ سمری میں 2 ملازمین والی دکان کو 30,000 روپے ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ سمری کا متن ہے، 1 ملازم والی دکان پر 20,000 روپے ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ شہری حدود کے اندر سگریٹس بیچنے والوں سے 5,000 ڈیوٹی عائد کی جائے۔
पंजाब टोबैको एक्ट के में तरमीम करने के लिए तजावीज़ भिजवा दी गई हैं। शहर में एयरपोर्ट तर्ज का बस टर्मिनल तामीर करने का फैसला। ठोकर न्याज बेग पर बस टर्मिनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। निजी एडवाइजर की सहूलत के लिए 3 करोड़ का पैकेज मंजूर कर लिया गया है। शहर में मुल्की सतह के जदीद बस टर्मिनल मंसूबे पर नई पेशरफ्त हुई है, जिसके मुताबिक पंजाब हुकूमत इस मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर करने जा रही है। गुज़िश्ता रोज डॉक्टर सलमान शाह की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में प्रोजेक्ट के लिए PDF की मद में 3 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। फंड से निजी एडवाइजर की मदद ली जाएगी, जो इस मंसूबे पर तकनीकी तौर पर लाहे अमल तय करेगी। एडवाइजर जदीद बस टर्मिनल से ज़राए आमदन के हसूल का प्लान भी तैयार करेगा, जबकि ट्रैफिक का प्लान और सरकारी बस अड्डों के मुस्तकबिल के बारे में भी एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दूसरी जानिब IRD बस टर्मिनल मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए का तखमीना लगा चुकी है, जबकि इसका इब्तदाई तौर पर डिजाइन भी तैयार। अभी आपको एक बार फिर से आगाह करें, वजीर आला को तब्दील करने का कोई फैसला नहीं हुआ। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। सरदार उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद ने बता दिया डट कर काम करें। वज़ीर आला को तब्दील करने का कोई फैसला नहीं हुआ। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, सरदार उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद ने बता दिया कि डट कर काम करें। तो कप्तान के खिलाड़ी कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आला को तब्दील करने का कोई फैसला नहीं हुआ। सरदार उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद ने बता दिया कि डट कर काम करें। वज़ीर आला को तब्दील करने का कोई फैसला नहीं हुआ, ज़राए की जानिब से बताया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद ने ये बता दिया है कि वो डट कर अपना काम जारी रखें। वज़ीर आला को तब्दील करने का कोई फैसला नहीं किया गया। ज़राए की जानिब से ये बात बताई जा रही है, सरदार उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद ने बता दिया कि डट कर काम करें। सरदार उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद ने बता दिया है कि डट कर काम करें। ज़राए की जानिब से ये बात बताई जा रही है कि वज़ीर आला को तब्दील करने का कोई फैसला नहीं किया गया। पंजाब में बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए इक़दामात। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से हुकूमत बड़ा मंसूबा शुरू करेगी। $600 मिलियन से इंटरमीडिएट सिटी इंप्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू होगा। पंजाब भर में मौजूद छोटे कस्बों को अपग्रेड किया जाएगा। लाहौर में बढ़ती आबादी रोकने के लिए शेखुपुरा, ननकाना तरक्याती पैकेजेस दिए जाएंगे। बड़े शहरों में मौजूद सहूलियात छोटे शहरों में फराहम की जाएंगी। मंसूबे को 2 फेज में मुकम्मल किया जाएगा और लागत $250 मिलियन आएगी। $200 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक अदा करेगा। $50 मिलियन हुकूमत पंजाब अदा करेगी। मंसूबे को अमली जामे पहनाने के लिए 7 कंसल्टेंसी फर्मों को हायर किया जाएगा। और अभी आपको बताएं, ऑरेंज लाइन ट्रेन के डिपो डेरा गुजरा से मुल्हिका आबादियों की सुनी गई है। हुकाम बाला ने शिकायत को तस्लीम करके मेगा स्टोरेज प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। सीवरेज सिस्टम की 12 स्कीम्स के लिए 6 करोड़ 31 लाख का तखमीना लागत तैयार किया गया है। कमिश्नर जुल्फिकार अहमद घुम्मन ने UC 175 के मेगा तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी। सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन की तामीर 3 करोड़ 96 लाख 63 हज़ार लागत आएगी। सीवरेज सिस्टम लाइन्स 41 लाख 54 हज़ार 33 लाख 75 हज़ार में मतलूबा मशीनरी खरीदी जाएगी। लैंड एक्विजिशन के लिए 60 लाख, लेस्को की लाइन्स के लिए 48 लाख का तखमीना लागत तैयार किया गया है। रोड कट, मीडिया कैंपेन समेत दीगर सर्विसेज की मद में तखमीना लागत तैयार किया गया है। सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन की तामीर के लिए भी तखमीना लागत मुकर्रर कर लिया गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के डिपो डेरा गुजरा से मुल्हिका आबादियों की सुनी गई है। उधर तारीखी इमारतों की असल हालत में बहाली का फैसला किया गया है। महकमा बल्दियात ने तारीखी, सरकारी और निजी इमारतों का डेटा तलब कर लिया है। तारीखी इमारतों की तस्वीर और तारीखी पहलुओं तफसीलात जमा करवाना होंगी। तस्वीर और तारीखी पस मंजर बजरिया ईमेल अरसाल किया जाए। महकमा बल्दियात की जानिब से कहा गया है, पहले मरहले में तारीखी म्यूनसिपल इमारतों की असल हालत में बहाली ज़ेर गौर है। LWMC का मिशन क्लीन लाहौर नारों से आगे ना बढ़ सका। पोश इलाके भी कचरा कुंडी बन चुके हैं। गुलबर्ग मेन मार्केट, मिनी मार्केट, लिबर्टी और गालिब मार्केट में जा बजा कूड़े के ढेर लगे हैं। शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। ये कूड़ा दरअसल पिछले 6 माह से पड़ा है, इसकी वजह से बड़ा मसाइल पेश आ रहा है। अक्सर कात ये दूसरा बीमारी फैलने का खदशा है। मच्छर और मक्खियाँ अक्सर यहाँ पे डिस्टर्ब करती हैं।
अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो जाए, कूड़ा रोड पे आ जाए तो एक्सीडेंट होने का खर्चा है, तो काफ़ी मसाइल पेश आ रहे हैं इस वजह से। पूरे इलाके का कूड़ा इधर जमा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए हमने कई बार इनके बड़ों से दरख्वास्त की कि यहाँ से कूड़े वाले ड्रम ने कहीं और शिफ्ट किए जाए, मगर कोई नहीं, वो पैसे वगैरह ले के इधर कूड़ा फेंकते हैं, कोई पूछ नहीं। इतनी बदबू आ रही है, कोई कस्टमर दुकान पे खड़ा नहीं होता। सेक्रेटरी बल्दियात सफाई मिशन के लिए मैदान में आ गए। नूरुल अमीन मेंगल के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, सफाई की सूरत हाल में जल्द बेहतरी लाने का दावा किया। वसाइल में कमी का एतराफ़ भी किया। सेक्रेटरी बल्दियात ने LWMC के मुलाजमीन की हड़ताल खत्म करवा दी। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने सफाई मिशन के लिए कमर कस ली। वहदत रोड, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, यतीम खाना चौक में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि ट्रांजिट पॉइंट से वेस्ट कलेक्शन का ठेका दे दिया गया है। कूड़ा उठाने के लिए टीमों को प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक कचरे की कलेक्शन के लिए 6000 कंटेनर्स खरीदे जा रहे हैं। शहरियों को प्लास्टिक के थैले भी फराहम किए जाएंगे। हम कचरा कहाँ फेंके, या तो डब्बे हों, कंटेनर्स हों, उधर फेंके, उधर नहीं है तो लोगों ने तो सड़क पे फेंकना है उसको। इसी वजह से कचरा विजिबल ज़्यादा हुआ तो इनको 6000 डब्बों की अप्रूवल भी दे दी है पूरे लाहौर में। वो उसकी भी प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, वो भी आपके आने वाले दिनों में नजर आ जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात LWMC की वर्कशॉप भी गए। वर्कर्स को 2 माह से रुकी तनख्वाहें अदा करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। नूरुल अमीन मेंगल ने वर्कर्स को पूरी लगन से काम करने, मशीनरी को जल्द अज जल्द कारआमद बनाने की हिदायत जारी की। उनका कहना था कि लाहौर हम सब का घर है, घर की सफाई करना मुलाजमत के साथ साथ इबादत भी है। का ज़िम्नी इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। हमजा शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह समेत दीगर की शिरकत। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम की ताकत से ज़िम्नी इलेक्शन में कामयाब होंगे। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में डस्का ज़िम्नी इलेक्शन के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़िम्नी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की। हुकूमत की बदतरीन धांधली पूरी कौम ने देखी। उन्होंने कहा कि अवाम ने मौजूदा हुक्मरान को मुस्तरद कर दिया है। 18 मार्च को ज़िम्नी इलेक्शन में कामयाबी के लिए पूरी पार्टी जान लड़ाएगी। इतालवी सफीर लाहौरियों की मेहमान नवाजी से मुतासर हुए हैं। अजायब घर का दौरा किया, तारीखी नवादरात और गंधार आर्ट में गहरी दिलचस्पी ली। सफीर एंड्रेस फेरारेसे ने अजायब घर का दौरा किया। अतालवी सफीर ने नवादरात, गंधारा तहजीब और आर्ट के नमूनों में गहरी दिलचस्पी ली और अजायब घर की राहदारियों में तस्वीर बनवाई। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए मेहमान सफीर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा अतालवी सयाह आएं, लाहौरियों की मेहमान नवाजी, सकाफत और तारीखी अहमियत से रोशनास हों। I really wish that we will have an increasing of Italian tourists and visitors that they can benefit of the same beauty, and I'm sure there will be a huge interest. इटली के सफीर ने सिटी न्यूज नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा किया। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, चीफ एडिटर सलीम बुखारी, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, डायरेक्टर न्यूज 24 मियां ताहिर, कंट्रोलर न्यूज 24 अहमद वलीद ने इस्तकबाल किया। अतालवी सफीर ने न्यूज स्टूडियोज, प्रोग्राम स्टूडियोज, असाइनमेंट डेस्क, न्यूज प्रोडक्शन, कॉपी डेस्क, न्यूज पेपर सेक्शन समेत मुख्तलिफ शोबों का विजिट किया। उन्होंने सिटी न्यूज नेटवर्क के न्यूज रूम को आलमी मयार के मुताबिक करार दिया।